Good morning, children. How are you all? Hopefully, everyone is fine. See, chapter number 2 we are going to start today, and that is Beautiful Blue Planet. Okay, Beautiful Blue Planet. It is a poem actually, and which is been written by Safano the Knight. Okay, so he is the poet of this poetry. Okay. So, beautiful blue planet. So, we shall read the poem first. Looking down at you, planet Earth, I remember you as a beautiful blue. Now your oceans are black with oil. Look closely, you know it is true. Your rainforests are all gone now, and your ground is a sickly brown. What in the world have they done to you? Pretty planet in the round. Your white clouds once held fresh water, now they are filled with acid rain. Your plains are barren with erosion, they were once overflowing with grain. When did your clouds turn such deathly grey? Your air is impossible to breathe. Didn't you, your stewards, even notice before they started to gasp and wheeze? Could the powers that be not save you from such dismal end? You were so right in killing them off, now you can begin again. Will your next caretakers be smarter and take better care of you? I pray they learn to be protectors. We miss you, beautiful blue. Okay. So here is the poem written by Safano the Knight. Okay. And it addresses the beautiful blue planet. So everyone knows about the beautiful blue planet, which is the blue planet, and that is our Earth. Okay, everyone knows that. We all know that our beautiful planet, our beautiful blue Earth is Earth. Okay, where we live. Now here the poet uses one of the figure of speeches. Figure of speeches means it is अलंकार. इन हिंदी वी कॉल इट अलंकार. ओके. एंड अलंकार में एक वो है, एक पार्ट है, उसको कहते हैं मानवीकरण. दैट मीन्स इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन मीन्स एनीथिंग विच इज नॉन लिविंग थिंग. पोएट और द राइटर एड्रेसेस इट एज अ लिविंग थिंग. ओके, कोई भी नॉन लिविंग थिंग को हम जब लिविंग थिंग के जैसे उनसे बात करते हैं तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. जिस भी चीज़ को जो कि नॉन लिविंग थिंग है हम उसको एड्रेस करते हैं, उससे बात करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं एज इफ इट इज़ अ लिविंग थिंग, जैसे कि वो लिविंग थिंग है, तो उसको बोलते हैं दैट पार्ट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. एंड फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? अलंकार. अलंकार का मतलब होता है आभूषण, ज्वेलरी. ओके, एक औरत ज्वेलरी क्यों पहनती है? क्योंकि वो सुंदर दिखे. Okay, in the same way, a poetry or a piece of art is decorated with the help of figure of speech or अलंकार. ओके, किसी भी पार्ट ऑफ कोई पोइट्री है, कोई प्रोज है, कुछ भी है ऐसा, उसको खूबसूरत बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए उसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया जाता है. सो पर्सोनिफिकेशन ऑल्सो इज अ फिगर ऑफ स्पीच. वी शैल स्टडी अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच इन लेटर क्लासेस. सो वन ऑफ दीज फिगर ऑफ स्पीच इज personification, and in this poem personification has been used. Okay, कौन है यहाँ पे? कौन पर्सन? जैसे किससे बात कर रहा है पोएट? ही इज टॉकिंग टू आवर प्लैनेट अर्थ. वो अर्थ से ऐसे बात कर रहा है जैसे कि वो इंसान है, अर्थ इंसान है. ओके, लुकिंग डाउन एट यू. किसको यू बोलोगे तुम? अगर किसी से बात करोगे, किसी सामने किसी इंसान से बात करोगे तो ही यू बोलोगे ना. इन द सेम वे द पोएट इज टॉकिंग टू प्लैनेट अर्थ and he is addressing it as you. Okay, looking down at you. तुम्हारी तरफ मैं जब देखता हूँ planet earth, I remember you as a beautiful blue. Okay, तो मुझे क्या याद आता है? You are beautifully blue. तुम्हारा beautiful blue color मुझे याद आता है. Okay, now your oceans are black with oil. Look closely, you know it is true. और अब क्या हालत है तुम्हारे oceans की? Because of the oceans only the earth looks blue. Is it not? So now what is the condition of the oceans? They have turned black with oil. अभी जो वो oceans की blueness है वो black में turn होगी. It looks blackish. Why? Because of the oil. ये oil कहाँ से आया? Because of the oil spills. देखे होगे ना, कभी शिपरेक्स होते हैं, ऑयल स्पिल हो जाता है समुद्र में, तो बहुत सारे जो समुद्र के जीव जानवर हैं वो मर जाते हैं, है ना. और पानी के ऊपर ऑयल तैरता रहता है और जितने जीव जंतु उसमें पानी में रहते हैं, मछलियाँ वगैरह मर जाती है. देखे होगे तो तुमने देखा होगा, है ना. सो बिकॉज ऑफ द ऑयल स्पिल्स इन द सी योर ओशंस हैव टर्न्ड ब्लैक नाउ. पहले कैसे थे? दे वर ब्यूटिफुली ब्लू. नाउ they have turned into black because of the oil spills. Okay, look closely at yourselves. अपनी तरफ ध्यान से देखो. You know it is true. और तुमको समझ में आ जाए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही
है ना. पहले क्या था, तुम ब्यूटीफुली ब्लू थे, सुंदर थे, लेकिन अब कैसे हो गए हो, यू हैव टर्न ब्लैक बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ द ऑयल स्पिल. ओके, योर रेन फॉरेस्ट आर ऑल गॉन नाउ एंड योर ग्राउंड इज सिकली ब्राउन. तुम्हारा जो रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट मीन्स जो घने फॉरेस्ट बनते हैं बिकॉज ऑफ द रेन, जहाँ पे मानसून अच्छा होता है, बारिश अच्छी होती है, वहाँ पे रेन फॉरेस्ट होते हैं. रेन फॉरेस्ट का मतलब होता है बहुत घने और हरे भरे जंगल. ओके, सो दे आर गॉन नाउ. अब क्या है, वो चले गए. अब पहले हुआ करते थे, प्रीवियसली वी यूज टू सी द रेन फॉरेस्ट. हम लोग जब हमारे एंसेस्टर से, हमारे दादा परदादा थे, उस समय पर क्या होता था, रेन फॉरेस्ट थे. बट अब क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ द सॉइल पोल्यूशन एंड ऑल, योर ग्राउंड इज सिकली ब्राउन. अब तुम्हारा ग्राउंड कैसा है, द ग्राउंड और द सर्फेस ऑफ द अर्थ, इट हैज़ टर्न इनटू सिकली. सिकली मतलब जैसे बीमार होते हैं, किसी चेहरे, इंसान के चेहरे को, बीमार चेहरे को देखोगे तो पेल दिखाई देता है, ब्राउनिश दिखाई देता है. ओके, तो अभी वो ब्राउन कलर का हो गया है. पहले हरे भरे हुआ करते थे, दे यूज्ड टू बी ग्रीन विथ रेन फॉरेस्ट, बट नाउ द ग्राउंड और द सॉइल हैज टर्न सिकली ब्राउन. सिकली ब्राउन मतलब जैसे कि बीमार लोग, मिट्टी जैसे बीमार पड़ गई है, जैसे कि उसमें कोई फर्टिलिटी नहीं है, अब ऐसा हो गया. What in the world have they done to you, pretty planet in the round? Okay, so what he says, what in the world, वो frustrate होकर poet बोल रहा है कि what in the world मतलब क्या ऐसा किया है उन लोगों ने. They have done to you. Who are they? You can imagine, who are they? Who is responsible for the pollution? Who is responsible for the loss of greenery on the earth? The bluishness of the ocean has been lost because of the people, because of us, human beings, है ना. तो human beings are responsible for this. So what in the world have they done to you? तो वो frustrate होकर बोल रहा है कि क्या कर दिया है तुम्हारे साथ इन लोगों ने. कौन से लोगों ने, human beings ने. Okay, pretty planet in the round, you used to be very pretty planet. सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत जो planet है पूरे सोलर सिस्टम में, that is our earth, because it looks beautifully blue. ओके, फ्रॉम द स्पेस ऑल्सो. तो तुम्हारा जो ब्यूटीफुली ब्लू कलर था उसको पूरे बर्बाद कर दिया इन लोगों ने. कौन लोगों ने, ह्यूमन बींग्स ने. ओके, योर वाइट क्लाउड्स वर वंस हेल्ड फ्रेश वाटर, नाउ दे आर फिल्ड विथ एसिड रेन. ओके, तो वाइट क्लाउड्स पहले क्या होता था, यू हैड वाइट क्लाउड्स which were full of fresh water. Okay, so they used to be white, they used to be very clean, they looked very neat and clean and crystal clear. They were filled with fresh water previously, but now what has happened, they are filled with acid rain. The clouds are filled with एसिड रेन नाउ. ओके, तो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे कि अभी एसिड रेन होने लग गया है. और क्या होगा, हमारे जो ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स हैं लाइक ताजमहल एंड ऑल, दे विल बी completely spoiled one day because of this acid rain. Okay, so the clouds are filled with acid rain now. The acid has been reached to the clouds. Okay, and when it rains along with the acid. Okay, your plains are barren with erosion. Barren means बंजर. अभी जो plains थे, जो हरे भरे plains हुआ करते थे, जो मैदानी जगह था, वो क्या हो गया है, it has been turned into barren. Barren means बंजर हो चुका है. With erosion, you might be knowing the meaning of erosion. In geography you might have studied. Erosion किसको बोलते हैं, जो top layer of the soil gets washed away because of the wind and वाटर. ओके, जो टॉप लेयर, जो फर्टाइल लेयर है सॉइल का, वो जब बारिश आती है, बहुत तेज़ बारिश होती है, तो क्या होता है, वो पानी से बह जाता है, मिट्टी का कटाव जिसको बोलते हैं. सो दैट इज़ इरोजन. ओके, सो इरोजन होते होते क्या हुआ है, जो सबसे टॉप वाला सॉइल होता है, द टॉप पार्ट ऑफ द सॉइल इट हैज़ ह्यूमस. ओके, यू माइट बी नोइंग दैट. तो ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस की वजह से ही मिट्टी फर्टाइल होती है, उसमें उपज अच्छी होती है, उसमें पेड़ पौधे अच्छे होते हैं, उसमें फसल अच्छी होती है. लेकिन क्या होता है, जब पेड़ नहीं होते, when there are no trees, when there is a shortage of trees, what happens, the top layer of the soil gets washed away because of the impact of wind and water. Okay, तो क्या होता है, तुम्हारा जो प्लेन्स में जो, यानी कि जो मैदान है, उसका जो मिट्टी है वो इरोजन से बैरन होते जा रहा है. यानी कि मिट्टी के कटाव की वजह से वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इट हैज़ टर्न्ड इनटू अ बैरन लैंड. बैरन लैंड मतलब बंजर धरती. ओके, then they were once overflowing with grain. And what was that before? And previously they were overflowing. Overflowing means when you fill a tumbler with water and the water gets overflowed and it falls down. Okay, so that is called overflowing. Overflowing matlab bhar kar gir jana, brim tak bhar ke girna. Okay, so previously what has happened, they were overflowing with grain. पहले grain से भरे हुए होते थे.
जो बंजर धरती के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, वो पहले कैसे होते थे, वो वहाँ पे बहुत अच्छे फसलें होती थी, ग्रेन्स बहुत अच्छे होते थे, दे यूज्ड टू बी ओवरफ्लोइंग विद ग्रेन्स. ओके, व्हेन डिड योर क्लाउड्स टर्न सच डेथली ग्रे? अगेन इट टॉक्स अबाउट द clouds. Your clouds means तुम्हारे clouds. Okay, he is talking to earth as if he is its friend. Okay, when did your clouds, कब तुम्हारे clouds such deathly grey हो गए, grey कलर के हो गए, such deathly, deathly मतलब एकदम जैसे डरावने, जिनको देखने से डर लगेगा, ग्रे कलर के हो गए, है ना? बिकॉज ऑफ द एसिड रेन, बिकॉज ऑफ द एसिड विच इज फिल्ड इन दैट. बिफोर हम लोग पहले पढ़े थे ना, एसिड रेन की वजह से वो डेथली ग्रे हो गए. ओके, ग्रे कलर के, पहले व्हाइट कलर के हुआ करते थे. दे यूज्ड टू बी व्हाइट एंड दे यूज्ड टू बी वेरी clear, clean and white, but nowadays they have turned into deathly grey colored. The air is impossible to breathe. Now he talks about the atmosphere, about the air of the earth. So what has happened to the air? It is impossible to breathe, and you know why it has been impossible to breathe. Abhi breathing impossible kyun hai? As you can see in the picture, kyunki धुआं है, smoke है. You can see so many vehicles around, you can see so many factories around which emit so much of smoke, which is very dangerous for our health. Okay, and they are polluting the air, you know that, is it not? तो अभी क्या हुआ है, air क्या हो गया है, it is impossible to breathe because of the smoke which has been mixed into it. Okay, didn't your stewards even notice? Stewards means caretakers. Okay, stewards, you might have seen the meaning here. Stewards means person who take care of people or household. ठीक है, जो steward किसको बोलते हैं, घर में जो काम करते हैं लोग या caretakers होते हैं, उनको stewards बोलते हैं. तो उसने क्या कहा, didn't your stewards even notice? Stewards means caretakers. So who are the caretakers of the earth? We are the most responsible, है ना? Because we are the human beings, we are the most intelligent creatures of the God, is it not? तो हम लोग क्या है, वर्ल्ड को का केयर टेकर हम ही हैं, एक्चुअली ह्यूमन बींग्स है. तो उसने पूछा, जो पोएट है वो पोएट अर्थ से पूछ रहा है, डिडंट योर स्टीवर्ड्स इवन नोटिस? तुम्हारे स्टीवर्ड्स ने ये नोटिस भी नहीं किया कि तुम्हारी क्या हालत है? योर क्लाउड्स, योर लैंड, योर plains, your water, everything has turned polluted and they have not even noticed. उन्होंने notice भी नहीं किया, उन्होंने देखा भी नहीं है. Before they started to gasp and wheeze, कब तक उन्होंने notice नहीं किया? कब तक नोटिस नहीं किया है? बिफोर दे हैव स्टार्टेड टू गैस्प एंड व्हीज. गैस्प का मतलब होता है हवा के लिए, यानी सांस लेने के लिए. जिस दम घुटता है ना, तो क्या होता है, गैस्प करते हैं हम, तेज से सांस लेते हैं. सो दैट इज कॉल्ड गैस्पिंग. जब तुम स्मोक के अंदर रहोगे तो तुम्हारा दम घुटेगा ना, तो उसको बोलते हैं गैस्पिंग. ओके, एंड वीज मतलब खांसने लगे, छींकने लग गए, और जब उनको सांस लेने में तकलीफ हुई, तब तक उनको समझ में नहीं आया कि उन्होंने अर्थ के साथ क्या बुरा किया है. ओके, कुड द पावर्स दैट बी डू नॉट सेव यू फ्रॉम सच डिसमेल एंड. ओके, तो वो तो हम लोग जैसे जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट पावरफुल क्रीचर्स इन द वर्ल्ड, है ना. तुमने स्टोरीज में सुने होगा कि गॉड भी मानता है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं. दे आर द मोस्ट पावरफुल बींग्स इन द वर्ल्ड. ओके, सो कुड द पावर्स दैट बी, उनके अंदर बहुत सारा पावर्स है, दे विल नॉट बी एबल टू सेव यू फ्रॉम सच डिसमेल एंड. वो तुमको जो बहुत बुरी, जो तुम्हारा एंड होने वाला है, हम सुनते हैं ना ये चीज़ कि हमारा एंड होने वाला है. डिसमेल एंड मीन्स अनप्लेजेंट कंसिक्वेंसेस. तुम्हारा अर्थ क्या है, बहुत बुरे कंसिक्वेंसेस में आने वाला है अभी, है ना. because of the pollution, because of whatever we have done to it, now it is going to show off, है ना. तो वो ही पूछ रहा है वो कि तुम्हारे जो स्टीवर्ड्स हैं उन्होंने कभी देखा नहीं, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि उनके पास इतना पावर होते हुए भी क्या तुमको वो इस डिसमेल एंड से अब बचा सकते हैं. तुम्हारे जो अभी बहुत बुरा कंसिक्वेंसेस आने वाला अर्थ के ऊपर, वो तुमको उससे बचा सकते हैं क्या. यू आर सो राइट इन किलिंग देम ऑफ. तो अब क्या हो रहा है, people are getting killed because of the smoke, because of the pollution, because of the disasters which are going on on the earth, है ना. तो he says that he justifies the killing of the people. जैसे कोई earthquake आता है, अभी floods आ रहे हैं, you might have seen, है ना. बाढ़ में हजारों लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं, घर टूट रहे हैं उनके. तो ये किस वजह से हो रहा है, बाढ़ क्यों आती है, floods क्यों आते हैं? because people are cutting trees, है ना. they are filling this ones रिवर्स, पॉन्ड्स एंड ऑल, उसको मिट्टी डाल के भर देते हैं, उसके ऊपर घर बना देते हैं. तो जो पानी आएगा वो कहाँ जाएगा, जो बारिश में पानी है वो बह के कहाँ जाएगा? इट विल ड्राउन द पीपल, इट विल सिंपली ड्राउन द प्लेस, है ना. वो उसी वजह से बाढ़ आती है, उसी वजह से फ्लड्स आते हैं, क्योंकि वो हम लोगों ने किया है, वी हैव डन इट. ओके, सो नाउ ही सेज दैट इट इज जस्टिफाइड. वो बिल्कुल सही हो रहा है जो कि अब तुम्हारे साथ हो रहा है, लोगों के साथ हो रहा है. यू आर सो राइट इन किलिंग देम ऑफ. तुम उनको मार रहे हो और ये बहुत सही कर रहे हो, क्योंकि
क्या होगा अगर इन लोगों को, उनको ये पनिशमेंट होना ही चाहिए, उनको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि उन लोगों ने क्या किया है. नाउ यू कैन बिगेन अगेन. अगर तुम उनको किल करोगे, सब लोगों को मार दोगे, दुनिया अगर ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा, एक नई शुरुआत होगी. दे विल बी अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू. ओके. विल योर नेक्स्ट केयर टेकर्स बी स्मार्टर एंड टेक बेटर केयर ऑफ यू. अब वो क्या सोच रहा है कि जब दुनिया के सारे लोग, ये लोग जो हैं, जो लोग इतने ख़राब है, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया है प्लानट को, अगर ये लोग सब खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, दे विल बी नेक्स्ट केयर टेकर्स. उसके बाद नेक्स्ट केयर टेकर्स आएंगे, है ना, दूसरा जनरेशन आएगा लोगों का. उसके बाद क्या होगा, विल दे बी एबल टू टेक बेटर केयर ऑफ यू. उसके बाद वो तुम्हारा केयर करेंगे क्या, बेटर केयर करेंगे. जितना इन लोगों ने ख़राब किया था वो लोग तुमको वापस संवार पाएंगे. आई प्रे दे लर्न टू बी प्रोटेक्टर्स, वी मिस यू ब्यूटिफुल ब्लू. तो वो प्रे कर रहा है, पोएट इज प्रेइंग फॉर द अर्थ दैट द न्यू केयर टेकर्स, जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पीपल जो लोग आएंगे, दे विल बी प्रोटेक्टर्स रादर दैन बी डिस्ट्रॉयर्स. हम लोग क्या कर रहे हैं, वी हैव डिस्ट्रॉयड द अर्थ ओनली. अभी विद इन फ्यू डेज यू माइट हैव एक्सपीरियंस, नो, जब हमारा लॉकडाउन हो गया था तो फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम वेरी फार ऑफ प्लेसेस, फ्रॉम 300-400 किलोमीटर्स अवे ऑल्सो पीपल वर एबल टू सी हिमालयाज बिकॉज देर वॉज नो पोल्यूशन, क्योंकि पोल्यूशन नहीं था, है ना. तो पोल्यूशन जैसा बढ़ते जा रहा है उसकी वजह से ही प्रॉब्लम्स हुए. ये जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से हुआ. और कुछ दिन हम लोग 1 महीना घर में बैठ गए तो एनवायरनमेंट कितना साफ हो गया, है ना. द अर्थ स्टार्टेड हीलिंग इटसेल्फ, है ना. So we are actually, what we are doing by running these vehicles, by producing smoke, by producing noise, by dirtying the soil, we are simply destroying our own home, we are destroying our own birthplace, है ना. तो we should stop it, is it not? The poet says that I will pray that they learn to be protectors. मैं pray करूँगा कि जो आपके next caretakers हैं वो protectors रहें, ना कि destroyers. जैसे अभी प्रेजेंटली जो लोग हैं वो लोग डिस्ट्रॉय ही कर रहे हैं. लेकिन अगर ये अगर जनरेशन ख़त्म हो गई, नेक्स्ट जनरेशन, न्यू जनरेशन ऑफ पीपल जो लोग आएंगे वो लोग आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ना कि आपको डिस्ट्रॉय करेंगे. वी मिस योर ब्यूटिफुल ब्लू. ही अगेन सेज दैट आई मिस योर ब्यूटिफुल ब्लूनेस. अब जो पहले ब्यूटिफुल हुआ करते थे वो, उसको मैं अब मिस करता हूँ. ओके. आई होप एवरीवन इज एबल टू फॉलो. थैंक यू.